রাজস্থানের বিচার ব্যবস্থায় সামনে এলো এক ব্যতিক্রমী ঘটনা। খুনের মামলায় যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত দুই বন্দীকে বিয়ের অনুমতি দিল রাজস্থান হাইকোর্ট। শুধু তাই নয়, সেই বিয়ে হবে যোধপুরের মান্ডোর ওপেন এয়ার জেলের মধ্যেই। আদালতের এই নির্দেশ ঘিরে ইতিমধ্যেই দেশজুড়ে শুরু হয়েছে জোর চর্চা। জানা গিয়েছে পাত্র মুলারাম জানে শেষের মামলায় দোষী সাব্যস্ত হয়ে তিনি 2017 সাল থেকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ভোগ করছেন। অন্যদিকে পাত্রী সীমা গাতসেগুলাব, তিনি স্বামীকে জানের শেষের মামলায় দোষী সাব্যস্ত হয়ে যাবজ্জীবন সাজা পাচ্ছেন। বর্তমানে তিনি 40 দিনের প্যারোলে রয়েছেন। দুজনেই ওপেন এয়ার জেলে থাকার সময় একে অপরের কাছাকাছি আসেন। পরে তারা বিয়ের সিদ্ধান্ত নেন এবং আদালতের অনুমতি চান। এই মামলার শুনানিতে রাজস্থান হাইকোর্ট গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ করে। আদালত জানায়, দুজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ যদি নিজেদের ইচ্ছায় বিয়ে করতে চান তাহলে সেই অধিকার ভারতের সংবিধানের 21 নম্বর অনুচ্ছেদের অধীনে জীবন ও ব্যক্তি স্বাধীনতার মৌলিক অধিকারের অংশ। শুধু কারাবন্দী হওয়ার কারণেই সেই অধিকার কেড়ে নেওয়া যায় না। আদালত আরও জানিয়েছে, এই ধরনের বিয়ে বন্দীদের পুনর্বাসন এবং সমাজে ভবিষ্যতের স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার প্রক্রিয়াকে আরও শক্তিশালী করতে পারে। সেই কারণেই বিয়ের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। হাইকোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী জেলের ভিতরে হওয়া বিয়ের অনুষ্ঠানে দুই পক্ষ মিলিয়ে সর্বোচ্চ 21 জন পরিবারের সদস্য এবং যিনি বিয়ে দেবেন সেই পুরোহিত উপস্থিত থাকতে পারবেন। এর বেশি কাউকে অনুমতি দেওয়া হবে কিনা সেই সিদ্ধান্ত নেবে জেল কর্তৃপক্ষ। বিয়ের দিন আগেভাগেই জেল প্রশাসনকে জানাতে হবে এবং নিরাপত্তা ও জেলের নিয়ম মেনেই পুরো অনুষ্ঠান সম্পন্ন করতে হবে। বিয়ের সমস্ত খরচ বহন করবেন মুলারাম। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকেও আদালতে জানানো হয়েছে, জেল বিধি মেনে ওপেন এয়ার ক্যাম্পে এই বিয়ে আয়োজন করতে সরকারের কোনো আপত্তি নেই। সরকার আদালতকে আরও জানায়, দুজনের বিয়ে করার ইচ্ছা রয়েছে এবং তারা আগে থেকেই একসঙ্গে থাকার কথা জানিয়েছেন। এই ঘটনাকে অনেকেই বন্দীদের পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে দেখছেন। আদালতের এই রায় আবারও মনে করিয়ে দিল, শাস্তি পেলেও একজন বন্দীর মৌলিক অধিকার সম্পূর্ণভাবে শেষ হয়ে যায় না। আইন এবং সংবিধান সীমার মধ্যেই তার ব্যক্তিগত অধিকার সুরক্ষিত থাকে। আইনজীবী কালুরাম ভাটি তিনি কি বলছেন শুনবো। इसमें जो मुलजिम है मुलाराम, ये नागौर जिले का अड़सिंगा गांव का है और इसको एक केस में सजा हुई थी और वहाँ से अजमेर जेल में इसको शिफ्ट किया गया था। अजमेर से फिर इसका आचरण को अच्छा देखते हुए इसको जोधपुर मंडोर ओपन एयर कैंप में भेज दिया गया था और ये पिछले 2 साल से ओपन एयर कैंप में अपनी सजा भुगत रहा था। इस दौरान ये अजमेर से यहाँ आने के बाद में ओपन एयर कैंप में अपना आचरण अच्छा था और ओपन एयर कैंप की जो व्यवस्थाएं हैं, वहाँ पे एक बंदियों का पंचायत होती है, उस पंचायत का इसको सरपंच बनाया हुआ है, पंच बनाया होता है। तो ये उस पूरे कैंप का मैनेजमेंट देखता है और ये अपना कार्य करता है, खेती का और सारा कार्य। इसी दौरान वहाँ पे एक महिला बंदी जो होती है सीमा, जो महाराष्ट्र की होती है और उसको उसकी बेटी मतलब उसकी माँ का द्वारा उसका विवाह यहाँ जोधपुर में कर दिया जाता है, घंटाघर में एक कौशल राज अरोड़ा के साथ में। उस विवाह के कुछ दिनों बाद जब उसको उस विवाह से नाराजगी रहती है क्योंकि उसकी वो पसंद से शादी होती नहीं है, तो अल्टीमेटली उसका वो रात को मरती है और उसको जोधपुर सेशन कोर्ट में उसको आजीवन सजा दे देते हैं। आजीवन सजा देने के बाद वो कंटिन्यूशन जेल में ही रहती है। जेल में रहने के दौरान भी उसका आचरण थोड़ा अच्छा हो जाता है, लेकिन उसके लगभग 7 साल के पीरियड में उसके परिवार से न तो उसकी माँ आती है कभी मिलने, न ही कोई परिजन उसका आया। तो वो जोधपुर जेल में इस दौरान रहते हुए उसकी एक महिला बंदी से उसकी दोस्ती हो जाती है। उस महिला बंदी के पिताजी उसको अपनी बेटी मान लेते हैं और इस दौरान इस महिला जो सीमा है, इसको हम पैरोल दिलाते हैं, फर्स्ट पैरोल 20 दिन की उसके स्वयं के मुचलके पे। और वो पैरोल वो फलोदी के अंदर जो ये रावड़ा गांव है, जो राधा किशन जी जो उसके मित्र है, महिला मित्र, उसके घर पे वो पैरोल काट के आती है 20 दिन और सही समय जेल में दाखिल हो जाती है। फिर जेल अधिकारी उसका आचरण अच्छा देखते हुए और उसका पैरोल का अच्छा आचरण देखते हुए
और उसका जेल का कंटेंट को देखते हुए इसको भी ओपन एयर कैंप मंडोर में भेज देते हैं और ये मंडोर में ओपन एयर कैंप में अपनी सजा सद आचरण के साथ भुगतती है। उस दौरान ये दोनों मूलाराम और सीमा का आपस में मुलाकात होती है और ये वहीं अपना कार्य करते हैं खेती का और इन दोनों के बीच में कुछ अच्छे संबंध बनते हैं और इन्होंने ये डिसाइड करते हैं कि वे अपन शादी करेंगे। लेकिन इनकी शादी में एक सबसे बड़ी बाधा आती है कि इस ओपन एयर कैंप में सिर्फ मैरिज किया हुआ बंदी ही रह सकता है और दूसरे बंदी जो भी रहेंगे वो अपने अपने क्वार्टर्स में रहेंगे। तो इनके लिए एक बड़ी विडंबना थी कि ये दोनों शादी करना चाहते थे लेकिन कानून में इसकी कोई प्रावधान नहीं था कि वो शादी कैसे करें। इस दौरान हमने सीमा की 40 दिन की पैरोल करवाई। वो 40 दिन की पैरोल पे अभी रिहा हो चुकी है और स्वयं के मुचलके पे वो बाहर है और मुलाराम की हमने अंतरिम जमानत माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में लगाई जिसपे माननीय न्यायाधिपति वरिष्ठ न्यायाधीश श्री डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह भाटी साहब और न्यायाधिपति श्री प्रवीण जी भटनागर साहब की खंडपीठ ने इसके ऊपर पुलिस से जांच रिपोर्ट मंगाई कि इसकी शादी वास्तव में है या नहीं है। এই নিয়ে একটি রিপোর্ট তুলে ধরেছেন আমার কলিগ অশোক শর্মা, দেখব। राजस्थान हाईकोर्ट की डबल बेंच ने एक मानवीय फैसला देते हुए नागौर निवासी मूलाराम जो अपने पड़ोसी की हत्या के मामले में आजीवन सज़ा काट रहे हैं और फिलहाल जोधपुर की जो मंडोर स्थित खुली जेल में उस खुली जेल के अंदर ये उनका जो सरकारी क्वार्टर है यहाँ पर वो रह रहा है। आचरण अच्छा है जिसके चलते खुली जेल में रखा गया है। लेकिन है जो अपने पति की हत्या के मामले में जो आजीवन सज़ा काट रही सीमा है, सीमा के आचरण को देखते हुए और उसे खुली जेल में भी रखा गया। लेकिन अब है कि इन दोनों के आपसी अच्छे संबंध होने की वजह से कोर्ट में गुहार लगाई गई कि इनको शादी करनी है क्योंकि शादी करना इनका नैतिक अधिकार है, जिसके चलते डबल बेंच ने यह आदेश दिया है कि इन्हें शादी के लिए परमिशन दी है। तो आगामी 22 जुलाई को है जो इस खुली जेल में इनकी शादी होगी जिसमें पंडित सहित तकरीबन 21 लोग हैं जो इस शादी में शामिल होंगे। और एक अद्भुत है जो एक उदाहरण पेश किया है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जब हमने मूलाराम से बात करनी चाहिए तो मूलाराम ने कोई बात नहीं की, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जो है हम जब मिले यहाँ सीमा है वो भी यही है। लेकिन अब है कि इनका मौलिक अधिकार के चलते अब ये लोग हैं जो 22 जुलाई को यहाँ परिणय सूत्र में बनेंगे और जिसके बाद है वो अपना जीवन यापन कर पाएंगे। लेकिन देखिए जोधपुर की मंडोर की ये खुली जेल है जहाँ पर ये दिन भर है जो खेती का काम करते हैं, जिसके बाद शाम को वापस इनकी जो अटेंडेंस होती है और जिसके बाद ये है जो वापस ये सरकारी क्वार्टर जो इनको अलर्ट हो रखे हैं इन क्वार्टरों में ये रहते हैं। उसके बाद है जो वापस रेगुलर इनकी दिनचर्या चलती है। आपको बता दें कि ये 2017 में है जो अपने पड़ोसी की थी, जिसके बाद ये लगातार है जो आजीवन कारावास मूलाराम झेला था। लेकिन जो सीमा है ये जो मुंबई की रहने वाली है और यहाँ जोधपुर के घंटाघर में अपने पति की जो हत्या करती थी, जिसके मामले में जो आजीवन कारावास है जो भोग रही थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से अच्छे आचरण के चलते है जो मूलाराम को तो अजमेर से जोधपुर सेंट्रल जेल शिफ्ट किया गया, जहाँ से खुली जेल भेजा गया, जबकि सीमा को 20 दिन की पैरोल दी गई। पैरोल देने के बाद उसका आचरण अच्छा रहा, लेकिन उसके बाद अब है जो फिलहाल सीमा 40 दिन की पैरोल पर है। लेकिन अब है जो कैदी मूलाराम और जो सीमा है अगली 22 जुलाई को परिणय सूत्र में बंधेंगे। অন্যান্য খবরে আপডেটের জন্য অবশ্যই নজর রাখুন আজ তাক বাংলার ইউটিউব স্ট্রিমিংয়ে। লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।